अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनना है. हमारे पास कुल मिलाकर टाइम है 3.5 महीने. Wow. We have said yes to it. For anyone who is outside of Delhi and is watching the podcast, can you tell them what GRAP is? So when we say German practices है हमारी, German engineering को हम लोगों ने adapt किया है. It's the gold standard in the world. You just mentioned a term, precast. For anyone who's watching, can you tell them what precast is? We are called cheap labor. और वो abundance में है. So when German mindset meets the Indian jugaad style, as you mentioned, what happens there? Is there a clash or is there some sort of new evolution? Hayes Contract is an Indian construction company specializing in bespoke, high-end exposed concrete finishes, known for innovative techniques, in-house R&D, and delivering complex architectural designs with seamless execution for facades and interiors, aiming to redefine industry standards with premium quality. Welcome to Design and Dialogues, Navneet. How are you? Good, Atharv. Thank you for having me here. For anyone who's clicked onto this podcast today, why should they listen to the podcast till the end? Okay, so my name is Navneet Kaur and I represent Rabekel Group. And under Rabekel Group, we have 4 companies, out of which today we would be discussing our construction wing by the name of Hayes Contract. And anybody who has quality first approach, whether he's the end client or an architect, this podcast is for them. Navneet, if you could very briefly tell us what Hayes Contracts is. Yes, Hayes Contractor is your partner for bespoke and tailor-made construction. We offer creative solutions for the built environment. इसमें आपकी construction activities में सब कुछ ही आ गया. हर तरह के materials आ गए और हर तरह की construction आ गई. चाहे वो rammed earth है, चाहे वो concrete के structures हैं, चाहे वो high-rise buildings हैं आपकी. Hayes Contract has the capability to undertake every kind of project. Okay. So Hayes Contracts, you do a lot of bespoke construction work. That's right. Bespoke and construction doesn't necessarily go together. Can you tell me what Hayes Contracts is doing which is different to other construction companies? Sure. Like I said, it is a quality first approach, which means we respect systems and documentation and process. And it's not a people first approach. It's a German approach, which says quality and longevity before anything. Okay. India is building more than ever. Yeah. In terms of not just in tier 1, but tier 2, tier 3 cities, rampant construction. But are we actually building better as well? पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान आज बनने को है. ठीक है, अभी तो टियर 1 सिटीज का ही डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है. आप देखो आसपास सब खुदाई है, कुछ ना कुछ चलता जा रहा है यहाँ पर. ठीक है ना, कई जगह हमारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग. बट इट डजंट नेसेसरीली मीन दैट वी आर डूइंग इट द राइट वे. Okay. ठीक है, अब उसमें आता है हमारा अप्रोच, हमारा माइंडसेट इंजीनियरिंग को लेकर, कॉस्ट को लेकर, बिल्डिंग की लॉन्जिविटी को लेकर, और ऐसे कई इसमें फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं एक प्रोजेक्ट का सक्सेस रेशो. Okay. ठीक है ना. अब टियर 2, टियर 3 सिटीज जो हैं हमारी, ठीक है, जितना टाइम लेंगी डेवलपमेंट में लेंगी अभी वो, पर फिलहाल तो आई बिलीव द फोकस इज ऑल ऑन आवर टियर 1 cities at the moment. Why do you think there is failure in quality when it comes to construction? What is the key reason? How should I answer that? Okay. I would say our mindset. Okay. हम बड़ी जल्दी किसी चीज को अडेप्ट नहीं करते हैं. टेक्नोलॉजी है हमारे पास, नहीं है तो कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड में है ना, इंपोर्ट की जा सकती है. अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आज से नहीं है, कई सालों से. बट एट द सेम टाइम इंडिया इज अ कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट. इसीलिए आप देखो कि कई जो इस्टेब्लिश ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर,
सिर्फ कंस्ट्रक्शन की मैं बात नहीं करती, एक ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं हम। उनके जो टॉप एंड मॉडल्स हैं ना, वो इंडिया में लॉन्च ही नहीं होते हैं, Okay. क्योंकि उन्हें पता है बिके, और जिसको इंपोर्ट करना है वो फिर इंपोर्ट कर ही लेता है उसको, ठीक है ना। सो एक तो कॉस्ट को लेकर हमारी बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है। उसके बाद ना कहीं आई डू नॉट लाइक दिस टैग पर्सनली, बट वी आर कॉल्ड चीप लेबर, और वो अबंडेंस में है, Yeah. ठीक है ना, And unskilled as well. अनस्किल्ड। और ये रेशो बहुत अलार्मिंग है और ये काफी डेंजरस भी है। 70-30 का रेशो है। Okay. 70 इज अनस्किल्ड और बाकी 30% में है जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, ठीक है ना। एक तो ये है हमारा, और दूसरा हमारा माइंडसेट। कहीं ना कहीं हम बड़े इगोइस्टिक हो गए हैं। दैट इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली हैज बिन। हमें सब आता है, हमें सब पता है। तो जैसे ही आपकी लिसनिंग क्लोज हो जाती है ना, आप कंज्यूम करना छोड़ देते हो। चाहे चीज आपके सामने भी पड़ी हो, बट योर ईगो वुड नॉट लेट यू पिक इट अप। ना जापान इज बिल्डिंग, सिंगापुर इज बिल्डिंग, हमारे बाद आजाद हुआ था वो। यूएई 90s में बिल्ड करना उसने शुरू किया है, आज इंडिया को सरपास कर गया है वो, ठीक है ना। हम कहीं ना कहीं रिजिडिटी में बस के रह गए। हमारे पास टैलेंट का कमी नहीं है, हमारे पास आर्किटेक्ट्स का कमी नहीं है, एक्सेलेंट डिजाइन सेंस वी हैव। हमारे पास अगर नहीं है ना, तो वो जिगरा नहीं है कि अब जो एस्थेटिकली इतना सुंदर बन गया है, अब उसको कोई इरेक्ट करके कंस्ट्रक्ट भी कर दे। हमारी प्रॉब्लम है, हमको उसको अपने बजट में कराना है, अपनी मेथोडोलॉजी के हिसाब से कराना है, Okay. क्योंकि हम विजनरी कहीं ना कहीं नहीं है। दैट इज व्हाट आई वुड से। हम 100 साल बाद का, 200 साल बाद का नहीं सोचते। हमें है कि वाइबिलिटी निकल जाए 15-20 साल, उसके बाद पॉलिश पुलिश होकर बस। So it's more like a band-aid system that we have. मोर लाइक अ बैंडेड सिस्टम। आप एनसीआर में जो क्वालिटी देख रहे हो बिल्डिंग्स की, बहुत अच्छी देख रहे हो। इससे मच बेटर आप काम बॉम्बे और साउथ इंडिया में देख लेते हो। और यहाँ के बिल्डर्स डरते भी नहीं है, आधे से ज्यादा जेल में है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। True. करेक्ट। और अगर आपको सजा हो भी गई है, आपने नॉर्म्स बना भी दिए, और जो भी हो गया, आपका दिवालिया निकल गया, आप बैंकरप्ट हो गए, फंसा कौन उसमें? End user. देन Hmm. उनकी हेल्प है कहीं किसी भी हिसाब से? बैंक उनको छोड़ेगा या आपका पीनल कोड उनको छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। सो ये जो पैसा है ना हमारा, फंसा चीजों में ज्यादा है, सिस्टम में कम है। Okay. ये एक प्रॉब्लम है। What do you think of the Indian construction industry right now? Is it very opportunistic rich or is it very chaotic? बोथ। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। लाइक आई सेड, पूरा हिंदुस्तान बनने को है। वी ट्रैवल अ लॉट। हम दिल्ली से निकलकर अब हम कर्नाटका में आ गए हैं, हम तेलंगाना स्टेट में प्रेजेंट हैं, हम हिमाचल में भी हैं। दिल्ली एनसीआर हैज बीन आवर हाउस फॉर 25 years नाउ, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत काम किया है हमने, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो वी नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है अगेन माइंडसेट की, Okay. ठीक है। और जो विदाउट अ सिस्टम, विदाउट अकाउंटेबिलिटी जो हमारा काम होता है, हमारी रिजिडिटी के हिसाब से, कि एक ठेकेदार आएगा उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम काम करा देंगे, ये डिजाइन है, और आर्किटेक्ट ही उनको सुपरवाइज कर लेंगे, नहीं तो उनका मैनेजर कर लेगा, और बिल्डिंग बन जाएगी। Okay. और बिल्डिंग बन भी जाती है, ऐसा नहीं है बिल्डिंग नहीं बन जाती। बिल्डिंग सस्टेन नहीं कर पाती, दैट इज द The main thing. आप उसको खूबसूरत बना लोगे, पर कितना टाइम वो मेकअप टिकेगा आपका? अगर स्ट्रेंथ में ही उसमें जान नहीं है, अगर उसका रीइंफोर्समेंट ही करेक्टली नहीं किया गया, उसमें इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ही आपने ठीक से नहीं डाली है, क्या लाइफ रहती होगी उस बिल्डिंग की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अ कॉन्क्रीट बिल्डिंग शुड सस्टेन 150 and 200 years Okay. if done rightly, Okay. ठीक है, विद लोएस्ट मेंटेनेंस। Yeah. आप कोई भी बिल्डिंग आसपास जो बन रही है, पिछले 20-25 सालों में भी अगर उठाकर देख लो, कैन यू क्लेम कि ये बिल्डिंग सस्टेन कर जाएगी इतना टाइम? नहीं कर पाती है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स भी आज दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, ठीक है ना, नोएडा स्पेसिफिकली, क्या हाल है उनका? Yeah. A lot of issues there. मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ बिल्डिंग्स 25-30 साल भी सस्टेन करेंगी, और ये 20-20 मंजिला के टावर्स हैं, Yes. 30+ फ्लोर्स हैं।
There's no accountability once the builder hands over to RWA. उसके बाद करो जो करना है तुमको, लीगल बैटल्स हैं, उसके बाद तो और कुछ नहीं है. Asset value वो zero. What you've just said, a lot of issues in Noida. The first storm, after the property has been handed over, the first storms come in and doors किसी के उड़ के जा रहे हैं, किसी के कुछ और हो रहे हैं. So And these are good builder names, yes, 100%. premium properties. Yeah. So tell me, year on year growth हमारी बहुत चल रही है. On paper, as we've said, that tier 2, tier 3 cities, we haven't even tapped into the market yet. But in terms of the growth on actuality, on the ground, is that really happening? You answer that. Is that really happening? और इसमें ना स्टेट रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते. चलो भाई, ये तो हमने एक दिल्ली एनसीआर का जो भी एग्जांपल लिया, बट ये ग्रोथ तो हर जगह हो रही है ना, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रही है. सो आई वुड नॉट से कि हाँ, पेपर पे ग्रोथ लेकिन हमारी बड़ी जल्दी हो जाती है. हमारे बोर्ड रूम्स में डिजाइन क्लोज हो जाते हैं. प्रॉब्लम तब आता है जब रबर मीट्स द रोड. Yeah. जब साइट पे डिस्प्यूट्स आपके आते हैं, साइट पे डिलेज आपके आते हैं, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आते हैं, वहां फिर ब्लेम गेम चलता है ना. फिर आपका ये आर्किटेक्ट का डिजाइन गलत था, नहीं ये कॉन्ट्रैक्टर ने इसको ऐसे किया, नो द पीएमसी इज एट फॉल्ट, नो द पेमेंट्स डिड नॉट कम इन टाइम, एंड देन देयर इज दिस फुटबॉल मैच. Yeah. Everyone's just trying to pass the blame on each other. And what sector, residential is really coming up, but what other sectors have you guys, Hayes Contracts, been doing projects in? Is it industrial, commercial? We have done a few factories in the past, but जो हमें better success मिला है, वो मिला है residential sector में. और उसका reason ये है that we are a premium company. Okay. ठीक है, हम अपने methods को पहले रखते हैं. Cost comes, but it is not the primary focus for us. Primary focus for us is कि एक disciplined तरीके से एक project को खत्म किया जाए. We are not chasing a timeline. Yeah. We are chasing a vision, which is in the benefit of the client eventually. Okay. आप एक बात बताओ, अगर एक प्रोजेक्ट को करने में 12 से 15 महीने का टाइम एक टेंटेटिव लगता है, और उसके मतलब की चीज भी बन रही है, ठीक है, क्लाइंट के मतलब की, आर्किटेक्ट के हिसाब से भी चीज बन रही है, क्वालिटी फर्स्ट भी बन रही है, तो एक लॉन्गर रन में क्या आपको फर्क पड़ता है कि उसमें 18 से 22 महीने भी अगर लग जाए तो इज दैट टू मच ऑफ एन आस्क? और उसके बाद कॉस्ट, ये टाइमलाइन को कंट्रोल करने के भी तरीके हैं, बट इट समवेयर एलिवेट्स द कॉस्ट, देन यू आर नॉट रेडी टू पे दैट कॉस्ट ऑल्सो. ठीक है ना? सो व्हेन वी से जर्मन प्रैक्टिसेस है हमारी, जर्मन इंजीनियरिंग को हम लोगों ने अडेप्ट किया है. इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड. ठीक है ना? और इसमें कोई डिनाइल नहीं है. आई एम नॉट एन एम्बेसडर ऑफ जर्मनी हियर, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है ना? it is the gold standard, but then it's not just Germany. We have adapted certain practices from Switzerland. हमारी कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मशीनरी वहां से भी है. Then Japan is something that we look forward to. ठीक है. उसके बाद सिंगापुर, हमने सिंगापुर से काफी कुछ चीजें सीखी हैं. सो ऐसे ये जो हमारी ट्रैवलिंग रही है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, it has made us so experienced that we know what technology, what methodology, what machinery, what infrastructure that we have to procure from different countries and different economies, and how we have to implement them in India, considering कि ये एक cost sensitive market है, considering कि यहाँ पर एक rigidity है लोगों में, जल्दी सुनेंगे नहीं, considering कि यहाँ सबको सब कुछ पता है, considering कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का एक वो रुतबा नहीं है, इट्स नॉट रियली अ वाइट कॉलर जॉब. ठीक है. डिस्पाइट ऑल दोज चैलेंजेस, Hayes Contract has crafted a position for itself, and today we are one of the most premium companies in the whole country. Okay. ठीक है. And I think our focus has been for the longest time restricted to Delhi NCR, because that was the market that we were comfortable with. But eventually, जैसे जैसे projects हमारे deliver होते रहे, we started getting demands from different parts of the country also. Right. फिर हमारे networking channels and all those activities, then social media came into picture. So now the demand is coming internationally also. Fantastic. That's so good. You touched on a few points. How India is perceived to be a cheap labor abundant country, cost first sort of approach. Yeah. Also, end clients not really taking their long-term vision into place. They're thinking about how a project should be done as quickly as possible. Yes.
Has that is that mentality slowly changing with the client as well, that they're happy to have a more sustainable approach, a long-term approach, and let go of the initial costs? Yes, it is. पर वो नंबर बहुत कम है. Okay. ठीक है ना? How many, if you have 10 clients per se, how many out of those clients actually say, let's have a sustainable approach? I'm happy to take 6 months extra if I have to, but let's build something which is, is more sustainable in the end. So हमारे साथ जो clients काम कर सकते हैं ना, they have to work in a way with a very open mind. ठीक है ना? अगर तो बहुत जल्दबाजी है, ऐसा नहीं है कि हम वो काम नहीं कर सकते, बट उसकी फिर डिफरेंट एक अप्रोच होती है ना, एक मेथड ही उसमें अलग फॉलो होगा. उसमें आप वैसे काम नहीं कर सकते हो जैसे अभी आप कर रहे हो. मशीनरी उसमें इंक्रीज हो जाती है. ठीक है ना? आपका मैनुअल काम जो है उस पर डिपेंडेंसी कम होकर आपको उसको ऑटोमेशन पे लाना पड़ता है. अभी एक रिसेंटली डिमांड आई है हमारे पास, हैदराबाद से आई है. अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनना है. हमारे पास कुल मिलाकर टाइम है 3.5 महीने. Wow. We have said yes to it. Okay. Is there a pressure? And it is not precast, it is cast in situ, which means the entire work would be done at site. Can you believe that? We can. ठीक है, आप चाइना को देखो, 9 घंटे में एक पूरा रेलवे स्टेशन उसने बना दिया with the help of automation. Yeah, okay. मैनुअल नहीं कर सकता ना, कैपेसिटी है ह्यूमन बॉडी की. Yeah. हम भी इन चीजों को लेकर आ रहे हैं. ठीक है, और अब तो 3D प्रिंटर्स आ गए. Yeah. आप कंप्यूटर पे हर चीज डालो और बिल्डिंग आपकी इरेक्ट हो जाती है. यू डोंट हैव टू डू दैट जॉब, द प्रिंटर वुड. ठीक है ना? तो ठीक है, इसमें एडवांसमेंट आ रही है, कई चीजें बदलेंगी, कई सिनेरियोज अब इसमें बदलेंगे, पर वो नंबर बहुत कम है. कितने लोग उसको हाँ बोलेंगे, बात इस पे है. कितना जल्दी वो चेंज हमारे वहां पर आएगा, बात उस पे है. Interesting. You just mentioned a term, precast. For anyone who's watching, can you tell them what precast is? श्योर. प्रीकास्ट होता है जहां पर आपकी दीवारें, आपके स्लैब, सब कुछ कास्ट किया जाता है फैक्ट्री में. उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइट पे, और वहां पर नट बोल्ट के हिसाब से उसको कसकर आप बिल्डिंग बनाते हो. दिस इज सिमिलरली जैसे हमारे मेट्रो बनी है. मेट्रो इज ऑल प्रीकास्ट. ये फैक्ट्री में बनकर आते हैं. रात को वो बड़ी बड़ी लॉरीज में फिर है ना, वो ब्रिज के सर्टन पार्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड देन यू सी नेक्स्ट डे वो काम हो चुका होता है. दिस इज व्हाट प्रीकास्ट इज. Okay. So we're in winter time now in Delhi NCR. Winter means GRAP in Delhi NCR for the construction industry. Winter means pollution in Delhi. That as well. For anyone who is outside of Delhi and is watching the podcast, can you tell them what GRAP is? So GRAP is Graded Response Action Plan, जो NCR में लगाया जाता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. अब इसमें कई एक्टिविटीज जो हैं उस पर बैन लग जाता है, जिनमें से कंस्ट्रक्शन एक है. इसके अलावा भी कई मेजर्स हैं. अभी तो रिसेंटली तंदूर पे भी हमारा बैन लग गया था. आई डोंट नो हाउ मच इट हेल्प रियली, बट ओके, यस, कंस्ट्रक्शन इज वन इंडस्ट्री दैट सफर्स रियली बैड. इसके साथ साथ में लॉजिस्टिक्स भी जो है, ठीक है ना, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें इफेक्ट होता है. अब इसमें इशू ये है कि ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही लगाया जाता है. ठीक है, अभी तक के हिसाब से. तो जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है ना हमारी, उसको या तो कई लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारे साउथ इंडिया में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बड़े स्मूथली चल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जो हमारी अप्रोच होती है अब पूरे साल की प्लानिंग की दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें हमें ये 2 महीने का बफर काउंट करके चलना पड़ता है. ये क्लाइंट को पहले से बताना होता है हमें कि अगर आपकी टाइमलाइन 15 महीने की है तो उसमें 2 से 2.5 महीने आप एक्स्ट्रा काउंट करके चलो जो आपके वेस्ट होंगे. ठीक है, और सिर्फ ग्रैप वेस्ट नहीं करेगा, मॉनसून अलग वेस्ट करेगा. तो वो कहीं ना कहीं टाइमलाइन ही आपकी 20-21 महीने पे चली जाती है, डिपेंडिंग की बारिशें किस हिसाब से हमारी चलती हैं उस पर. So when GRAP actually pushes the timelines a little bit, how does Hays Contracts actually forecast label planning, costs? What is your mindset at that point in time? हमारी कैलकुलेशन इसमें देखो पहले से होती हैं, एंड ऑल्सो हमारा जो डिपेंडेंसी है ना मैनुअल लेबर पे, लाइक आई सेड, वो काफ़ी कम है.
बिकॉज हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, it's a mid size company, Hayes Contract, which means कि हमारा कुछ बहुत ज़्यादा एकदम लेबर इंटेंसिव काम नहीं होता, ठीक है ना. सो एक तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं, Okay. क्योंकि bespoke अप्रोच होती है, हमारा टेलर मेड, हम लोग उसमें हर चीज़ पहले से इसमें मेंशन करके रखते हैं. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, हम मशीन्स से ज़्यादा काम करते हैं. टावर क्रेन्स होती हैं, उसमें बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना. वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हमें हेल्प कर देता है वहाँ पर. उसके बाद क्लाइंट के साथ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी कि इसमें आइडल पीरियड आपके चार्ज लगेंगे, ताकि जो आपके यहाँ पर स्टेशनड वर्कफोर्स है, जिसमें हमारे साइट मैनेजर्स हो गए, साइट इंजीनियर्स हो गए, ठीक है ना, लेबर हो गई, जो वहाँ पर स्टेशनड है डेडिकेटेड आपके प्रोजेक्ट के लिए, इसका लोड कहीं ना कहीं एक शेयर पॉसिबिलिटी में हम लोगों के ऊपर रहेगा. एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, दे अग्री टू इट. द सेंसिबल क्लाइंट्स, दे डू अग्री टू इट. Controversial topic. Yeah. But do you think GRAP and the measures, does it actually work? सी, आई डोंट थिंक कि आप 2 महीने को ये एक एक्टिविटी बंद करके कोई चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना. अब कंस्ट्रक्शन आपने बंद कर दी, आपने डीजल व्हीकल्स बंद कर दिए, ठीक है, बट उसका कुछ ऑल्टरनेट सिस्टम आपने उस कंपनी को दिया या उस इंडस्ट्री को दिया जो सफ़र कर रही है उस टाइम के ड्यूरिंग में, और 2 महीने में आपको लगता है कि आपके स्काइज क्लियर हो गए हैं. I don't think so. And I'll tell you a very important, this observation here. I was sitting with my niece the other day. पहले जब लैंडस्केप पेंटिंग बनाते थे, हम क्या करते थे, है ना? We used to paint the sky blue, correct? With some clouds in white. Yeah. She was painting a landscape, और उसने ग्रे कलर उठाया. She colored it, and we actually compared what she colored and what the scenario outside our balcony was. The color was actually gray, it was not blue anymore. ठीक है, तो अगर ये अकाउंटेबिलिटी आप किसी इंडस्ट्री के ऊपर फेंक रहे हो ना, सो ये मुझे नहीं लगता कि ये 100% इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प द गवर्नमेंट और द एंड यूजर और एनीबडी इन द इकोनॉमी इन एनी वे. इसमें एक पॉलिसी शिफ्ट का अब हमें ज़रूरत है, एंड अनलेस एंड अंटिल योर डिपार्टमेंट्स आर नॉट वर्किंग फाइन, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू रियली. You mentioned how the 2 months of the year cannot actually define and control the level of pollution. When we talk about pollution coming from construction sites, are there any steps taken into consideration at the site itself when GRAP has not been implemented? हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं, बट देखो, एक सिंगल कंस्ट्रक्शन साइट से आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो. एंड लाइक आई सेड, पूरा हिंदुस्तान अभी बनने को है. सो इसका मतलब आपको एक लार्ज स्केल पे पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये प्रोटोकॉल्स तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, और वो सिर्फ प्रीमियम कंपनीज पे या बड़े डेवलपर्स पे नहीं अप्लाई होने चाहिए, वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स पे हर जगह, चाहे वो किसी गांव में है, वो डिसिप्लिन में उनको लाना पड़ेगा. दिस इज हाउ यू ट्रेन पीपल, ठीक है. इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है. ये तो हवा तो आपकी ज़रूरत है ना, इसके बिना तो आप रह नहीं पाओगे, ठीक है ना. तो ये आपका थ्रू आउट द ईयर, अब ये एक डिसिप्लिन आपका चलना चाहिए, जो ग्रैप लगे या ना लगे, फिर इवेंचुअली दिस शुड बिकम अ प्रैक्टिस ऑल टुगेदर. अब बीजिंग का जो हाल था, चाइना ने उसको कंट्रोल किया या नहीं किया. सो जब एक कंट्री, एक सिटी उस चीज को कवर कर चुकी है, सो आई एम श्योर दैट केस स्टडी इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी. हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और जहाँ तक मेजर्स लेने की बात है साइट पर, तो आपका वेस्ट मटेरियल, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब कुछ कवर होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद आउटर आपका एक जो बैरिगेट होता है वो आपका लगा होना चाहिए. उसके बाद साइट के अंदर की आपके इसमें काफ़ी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, और जो टाइम टू टाइम आकर, जैसे दिल्ली में तो एमसीडी आता है, ये सब लोग आते हैं, ये लोग चेक करते हैं, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, हु आर रियली सेल्फ मेड, और जो अपने ब्रांड वैल्यू के साथ नहीं खेलती हैं, दे फॉलो. Okay. Coming to what Hayes Contracts does well, Yeah. there's a term which you were telling me about, which is monolithic construction. Yeah.
Can you tell me what monolithic construction is? Yeah, monolith construction is single pour concrete and joint free construction, jointless construction. ठीक है? और ये bespoke construction में हमारी स्ट्रेंथ, हमारी यूएसपी निकल के आई है, ठीक है? पर मोनोलिथ कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि हाई राइज में नहीं हो रही. मोस्टली जितने भी आप हाई राइज देख रहे हो, ये मोनोलिथ कंस्ट्रक्शन ही होती है. इनका फॉर्म वर्क जो डिजाइन होता है, माई वन, विच इज अ वाइडली यूज टर्म नाउ, ये मोनोलिथ कंस्ट्रक्शन ही होती है. Okay. ये भी पर मोनोलिथ कंस्ट्रक्शन एक रेपिटेटिव बिल्डिंग में करना, लाइक अ बॉक्स बिल्डिंग जिसमें आप पैटर्न्स चेंज नहीं कर रहे हो, डिजाइन का इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इट इज स्टिल क्वाइट इजी. पर उसको bespoke में अचीव करना मुश्किल हो जाता है. यस. अब हमारे केस में वी हैव दिस कैपेसिटी एंड दिस कैपेबिलिटी कि अगर 100 फुट लंबी दीवार है, 40 फुट उसकी हाइट है, एज अ कंपनी हेज कॉन्ट्रैक्ट हैज दिस कैपेबिलिटी to do this monolith Okay. joint free. Nice. Seamless. ये catch है इसमें, seamless. In terms of speed, strength, cost, where does monolith actually win? See, like I said, अगर तो repetitive patterns हैं जो usually developers के होते हैं, उसमें monolith construction से आप speed achieve कर सकते हो, because एक ही formwork है, रिपीट और वो बिल्डिंग आपकी इरेक्ट हो जाती है. बट व्हेन इट कम्स टू टेलर मेड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हाईलाइट आपने करना होता है, ठीक है, दोज आर टाइम टेकिंग. Okay. ठीक है, लेकिन एक बार अगर वो बन गए ना, और उस करेक्ट मेथोडोलॉजी से बन गए, उस पर ठीक आपने फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर लिया, उसकी जो ब्यूटी एस्थेटिकली निकल के आती है, और उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन होती है, इट एजेस ग्रेसफुली. You know, it doesn't become a very shabby building that you might need to demolish again in 20-30 years Okay. just to feel new. Then it's going to sustain forever. मतलब खुद तोड़ो तो तोड़ो, वो टूटने वाली तो नहीं है उसके. Given the advantages that you've just listed out, why hasn't monolith construction so big in India? Isn't. It is big in India. Okay. इट इज़ बिग इन इंडिया. ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस में नहीं है, पर इसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में नहीं किया जा सकता. उसका रीज़न ये है कि बहुत डाइवर्स है इंडिया. कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं सेस्मिक जोन है आपका, कहीं आपके पास कोस्टल रीजन आ जाता है. तो इसको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाना कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है. Okay. लेकिन किया जा सकता है अगर राइट अप्रोच के साथ राइट डिज़ाइन इस पे अप्लाई किया जाए तो. When we were doing our research, Maiwan also kept repeatedly showing up in the construction industry. Why is it getting so popular? See, Maiwan is a company's name first. UK की कंपनी है जो एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क्स बनाती है, और जो इंडिया में in fact it's quite famous across the globe now. और इंडिया में ये ज़्यादा फेमस इसलिए हो गया because ये it's easy on pocket. Okay. In comparison to its competitors. Right. ठीक है ना. और दूसरा, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, चाइना और मलेशिया में भी होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कॉस्ट कंट्रोल हो गई हमारी. माइवन इज अ फ्रेमवर्क जो आपके स्लैब्स, आपकी वॉल्स को मोनोलिथ जब कंक्रीट कास्ट किया जाता है, उसको रेपिटेटिव पैटर्न्स में, जैसे अब कोई हाई राइज बिल्डिंग बननी है तो वो आप मोनोलिथ इरेक्ट कर सकते हो और बहुत स्पीड के साथ कर सकते हो. Okay. उस फ्रेमवर्क को माइवन बोला जाता है. इट्स अ कंपनी नेम however, but it has become so famous like that. But माइवन के सुपीरियर ऑल्टरनेटिव्स जो उससे फ्लेक्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ कि जहाँ एक डिजाइन एलिमेंट का रिक्वायर्ड है, माइवन इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे. इट इज मोर सक्सेसफुल इन बॉक्स बिल्डिंग, और जिसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है. I'm saying box building in a manner that usually relates with a larger audience. जैसे builder flats हो गए, ठीक है ना. पर जहाँ पर आप Again, where repetition is Exactly. included. Yeah. So it's not a negative word, but I'm just speaking it from that perspective. पर जहाँ आपको डिज़ाइन के साथ प्ले करना है, and at the same time a monolith
कास्ट भी करना है, वहाँ पर फिर पेरी है, डोका है, स्पेनिश कंपनीज भी उसमें और आ जाती हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स बेटर हैं अगर हम इसको कंपेयर करें माई1 के साथ। Since we're talking about materials, let's talk about exposed concrete as well. It's been there for quite some time. Yeah, it's concrete has been here since before Romans. Do you know the origin story of how it might have come into construction? सी कंक्रीट की जर्नी ना बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, ठीक है ना, पर सिंस यू हैव टच दिस टॉपिक ऑफ एक्सपोज कंक्रीट, ये एकदम से फेमस और दोबारा फैशन में कैसे आ गया, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंटेशंस कई हुए हैं और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड नोन आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने इसको एज देयर मेन सब्जेक्ट प्रैक्टिस किया। उनमें से एक आर्किटेक्ट हैं टडाओ वांडो, जो बहुत फेमस हो गए अपने प्रोजेक्ट के साथ क्योंकि उन्होंने इसकी फिनिश पे और इसके फॉर्म वर्क पे काम करके एग्जीक्यूशन में इसको बहुत स्मूथ एक मटेरियल जैसे इसको प्रेजेंट किया, ठीक है ना। सो एक्सपोज कंक्रीट की बिल्डिंग आप देखो, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, आधी दुनिया तहस नहस हो गई थी, सो देयर वर नॉट मेनी मीन्स, है ना। और आप कहीं भी यूरोपियन कंपनीज में ट्रैवल करो, स्पेशली स्विट्जरलैंड, हालांकि ना डैमेज वहाँ नहीं हुआ था, बट जर्मनी, ठीक है, एंड देन एग्जैक्टली मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, इनको बस ये था कि किसी तरीके से शेल्टर मिल जाए, तो इन्होंने कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाई, कुछ फिनिश नहीं किया उसको, कुछ नहीं किया, बट बड़ी रोबस्ट बना दी, कहीं से बॉम्ब वॉम्ब गिरे तो नुकसान जितना कम हो सके उतना हो, ठीक है ना। और वो बिल्डिंग्स आज भी खड़ी हैं, तब की बिल्डिंग आज तक सस्टेन कर रही हैं, ठीक है ना। सो इन बिटवीन ये कहीं ना कहीं इसमें एवोल्यूशन आ गया कि इस रॉ इमोशन को और बेटर कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर इसमें अलग अलग फिनिशेस आई, फिर इसमें टेक्सचर्स आ गए, फिर इसमें कलर्स आ गए, ठीक है ना। सो एक तो होता है क्लैड कर दिया आपने बिल्डिंग के ऊपर, कुछ जैसे टाइल्स लगा दें वैसे कुछ क्लैड कर दिया, ठीक है। एक होता है आपने उसको बनाया ही इतनी खूबसूरती के साथ कि जो उसका एक्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग है वही अब उसका इंटीरियर भी हो गया, वही उसका फसाड भी हो गया, वही उसका फाइनल फिनिश भी हो गया, राइट। दैट इज व्हाट एक्सपोज कंक्रीट बिल्डिंग इज, ठीक है। अब इसमें फर्दर एवोल्यूशन के साथ इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है, बिकॉज इसमें हम मटेरियल के साथ अब प्ले कर रहे हैं, अब इसमें हम मेटल यूज करते हैं, इसमें हम इसको वुड के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं बड़ा अच्छा, ये स्टोन के साथ बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, ठीक है ना। एंड यू डोंट हैव टू नेसेसरीली स्टिक टू ग्रे एनी मोर, ओके। अब इसमें पिगमेंट्स आते हैं, ठीक है, आप कलर मिक्स करो, पर वो उस पिगमेंट को वो सस्टेन कैसे करेगा लॉन्ग रन में, बिकॉज यू नो विद वेदर विद ईयर्स इट एजेस। अब उसको लॉक करने की फिर एग्जीक्यूशन ट्रिक्स इसकी अब तो बहुत कुछ आ गया है। दिस इज वन सब्जेक्ट दैट वी हैव रियली मास्टर्ड, हेस हैज रियली मास्टर्ड, and this is not overconfidence or arrogance, but I think if you really want a good exposed concrete building, Hayes Contract is one company that has every single possible solution in this subject for you. Exposed concrete is not only it's aesthetically pleasing but also sustainable, is that right? Sustainable, okay. Okay, this might sound contrasting to many people. कंक्रीट का फुटप्रिंट है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, ठीक है, पर वो जब बिल्डिंग बन रही होती है ना उसका फुटप्रिंट तब तक है, ओके। एक बार जब बिल्डिंग बन गई, अब कंक्रीट की एक खासियत है कि वो दिन में हीट एब्जॉर्ब करता है, रात को उसको रिलीज करता है, विच मीन्स कि इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। इफ डन राइटली, these buildings sustains, like I said, 150 200 years and more, ठीक है। So in a longer run, when you don't really have to redo these buildings, they eventually contribute into sustainability.
और अब इसमें भी फर्दर R&D हो रही है, ठीक है, कैसे इसको ब्रीदेबल बनाया जा सकता है, कैसे इसमें बेटर प्रॉपर्टीज लाई जा सकती है, कैसे इसमें फर्दर अदर मटेरियल्स के साथ मिक्सिंग करके इसको और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, जिससे इसके और कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो अप फॉर इट। सो अगर कोई है ऐसे आर्किटेक्ट या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, हम इसको अडाप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। What is something that most designers don't understand when they use exposed concretes on the sites? Okay, I'll be a little blunt in answering this because we have seen this happening, ठीक है, and Yeah. these are good names in the industry, like big shots also. You understand RMC? No, tell me. Ready mix concrete, Okay. ठीक है। वो हर कंक्रीट की बिल्डिंग जो रॉ छोड़ दी जाती है उसको एक्सपोज कंक्रीट की बिल्डिंग बोलते हैं, Mm-hmm. ठीक है। बट दीज बिल्डिंग्स आर वेरी शैबी लुकिंग इन अ कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसमें हनी कॉम्बिंग हो जाती है ना, इसमें और चीजें आ जाती हैं। एक्सपोज कंक्रीट की बिल्डिंग बनाकर आपको उसको क्लीन करके उसको सील भी करना होता है। कई लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि एस्थेटिक ही उसका ऐसा चाहिए होता है कि जैसे इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी अनब्रश्ड, तो उसको सील करने के फिर अलग तरीके होते हैं ताकि उसको भी सस्टेन किया जा सके। सो इस तरह के फैक्टर्स हैं, आई थिंक, जो कई डिजाइनर्स दिमाग में नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं क्लाइंट भी उसमें मिसगाइड होता है ना। और जो आप एक 3D में एक चीज बनाते हो वो फिर इन रियलिटी निकल के नहीं आ पाती है। Okay. German engineering dominates most of the industries, whether it be electronics, whether it be cars. Why has Hayes Contracts adopted this technology? What was the mindset behind this? डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, लॉन्जिविटी। सो जो उनकी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है ना, और वो मानना पड़ेगा, ये मतलब ये सिर्फ हेज कॉन्ट्रैक्ट ने उसको अडेप्ट नहीं किया, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ वेल रिकॉर्डेड फैक्ट, ठीक है। There's a lot of testimonials. आप मत चलाओ ऑडी, आप चला लो महिंद्रा, आई विल बी वेरी हैप्पी। That's a homegrown brand, right? I'll be very happy. Now, I also have a German car, and at the same time, I also have a Tata top-end car. Okay. छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे घर में ही ये तो कंपैरिजन है ना। मुझे पता है कि जब उसकी सर्विसिंग करानी होती है हमारे इंडियन ब्रांड की, कितनी ईमेल्स मेरी जाती हैं और क्या क्या उसमें सॉफ्टवेयर में मुझे आज तक इश्यूज आए हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अथर्व, आई हैव never encountered any problem in last 8 years with that German car that I'm driving. Nothing at all. उसका रीजन ये है, मैं आपको एक बताती हूँ। एक होता है पीपल सेंट्रिक अप्रोच, Yeah. जिसमें आपके इमोशंस आ गए, जिसमें जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से एक सिस्टम डिज़ाइन होता है और आप उस पर काम करते हो, जो अभी तक का हमारा इंडियन सिस्टम रहा है, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा इसको ऐसे कर लो, हम बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। नहीं मेरा बजट नहीं है, अच्छा इसको यहाँ स्क्वीज कर लो, हम वहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिकॉज हर हाल में हमें एक चीज़ ख़त्म करके बस ख़त्म करनी है, ठीक है, बस दे दी है, अब ये हो गया हमारा, अब उसके बाद तुम जानो, आप ही ने तो कहा था, हमने ऐसे कर दिया, दिस इज अप्रोच हैज़ बिन। और ये आज भी प्रैक्टिस होती है कई चीज़ों में, इसको और थोड़ा इंग्लिश में पॉलिश करके बोल दो, बट प्रैक्टिस यही हो रहा है। देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लेटर। इफ अ सिचुएशन हैज अ रीजन, देन उसके बाद आप उसको उसी को टैकल करने में रह जाते हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं आती कि ये गलत हुआ है। हमने जर्मन प्रैक्टिसेस इसलिए अडॉप्ट की क्योंकि वहां पर ना जुगाड़बाजी नहीं है। एक चीज जो डिजाइन हो गई है वो उसी प्रिंसिपल के तहत में चलेगी, और उसी प्रिंसिपल के तहत हम चलते हैं। उसी के हिसाब से जो रिक्वायर्ड मशीनरीज थी हमने उसको इस्तेमाल किया अपने प्रोजेक्ट्स में, और उसके विजिबल रिजल्ट्स हैं। एनीबडी हु कम्स टू माई साइट्स दे कॉम्प्लीमेंट कि ये तो आंख का ही फर्क है। सो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता दैट कुछ प्रैक्टिसेस हमसे सुपीरियर हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है
कि हमने उसे अडेप्ट किया इन लाइफ डिसिप्लिन ऑल्सो ऑल टुगेदर, ठीक है ना। इसलिए हम जिस तरीके से बात करते हैं उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस है हमारा। हम हर एक चीज़ को, हर एक प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं। जब हमसे इस तरीके के वेग सवाल किए जाते हैं कि आप कितने पर स्क्वायर फीट पे काम कर दोगे, हम नहीं उसका जवाब देते। हम उसे ग्रेसफुली टैकल करते हैं दैट दिस इज नॉट हाउ आवर प्रैक्टिस इज। Okay. आपका प्रोजेक्ट पहले स्टडी किया जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन समझी जाएंगी। आप अपना BOQ डॉक्यूमेंट हमें दिखाओ, लेट अस स्टडी दैट, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पे कितना खर्चा आपका आना चाहिए, Okay. ठीक है। और उसके बाद इफ यू थिंक दैट क्वालिटी इज योर अल्टीमेट सुपीरियर रिक्वायरमेंट हियर, देन वी आर द राइट कंपनी फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि अगर आपको कई चीज़ों में चल जाएगा, तो वो चल जाएगा वाली कंपनी मैं नहीं हूँ। So when German mindset meets the Indian jugaad style, as you mentioned, what happens there? Is there a clash or is there some sort of new evolution? बिल्कुल होता है, भीड़ के क्लैश होता है, पर उसके बाद एक हाइब्रिड मॉडल के निकल के आता है, जैसे कि हेस ने अडॉप्ट किया ओवर द टाइम। जब हम भी इसमें इनिशियली बहुत ज़्यादा करते थे ना, जर्मन दिस जर्मन दैट, तो सामने वाले कई बार ऑफेंड भी हो जाते थे कि यार मेक इन इंडिया चल रहा है, तुम क्या ये German technology. ये क्या कर रहे हो आप? पर फिर रिजल्ट्स भी नहीं आते, Okay. है ना। बिकॉज अभी अगर आप देखो ना, मतलब इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। बट दिस मेक इन इंडिया इज मोर और लेस असेंबल इन इंडिया। Right now it seems like it because you're still importing most of the important components or parts and then योर असेंबलिंग, executing it over here. अगर तो आप कोई टेक्नोलॉजी इस तरीके की ले आओ जिसको हम अडेप्ट करके आगे एक्सपोर्ट कर सकें और वर्ल्ड हमारा मार्केट प्लेस बन जाए, जो अब डिफेंस में होने लगा है, ठीक है ना। सो I think that is when we can see that we are the true face of Make in India. This will take time, but this will eventually happen. पर तब तक हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। कंस्ट्रक्शन तो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है, तो आज का डिसिप्लिन हमें चाहिए, आज की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमें तो वो चाहिए, ठीक है। तो एक हाइब्रिड मॉडल उसमें निकल के आता है आपके पास, जो हेज कॉन्ट्रैक्ट को इवेंचुअली अब प्रेजेंट करना पड़ा। और मैं आपको इसमें बताती हूँ क्लैश कहाँ होता है। व्हेन वी से क्वालिटी फर्स्ट, सो जर्मन्स का ये अप्रोच है कि टाइम जितना लगे सो लगे, ठीक है। पर जो चीज़ जैसे बननी है ना, जो डिफाइन हो गई, ड्राइंग्स में डिफाइन हो गई, सिस्टम में डिफाइन होगी, वो वैसे ही बनेगी। वेयर एज इन इंडिया हमारे 2 फैक्टर्स हैं, Last minute changes भी होते हैं. फिर हमारे 3 फैक्टर्स हैं जिसमें एक है टाइमलाइन, फिर है हमारा कॉस्ट, फिर है हमारे लास्ट मिनट चेंजेस, जो वाकई में लास्ट मिनट तक चेंज होते ही रहते हैं। जर्मन में ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। लास्ट मिनट चेंजेस की हमने फिर भी 10 to 20% एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाई, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो आपको उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उसको ऑनर करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। वी एडजस्टेड, सो 80% वी फॉलो आवर सिस्टम्स, 20% समवेयर वी आर फ्लेक्सिबल विद यू, ठीक है। उसके बाद टाइमलाइंस, हर चीज आपको जल्दी चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जहां तक हमारे बस में हम क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं, पर जहां फिर हमारे बस में नहीं है तो फिर हमने इवेंचुअली एक अब फैक्ट्री सेटअप कर लिया अपना, जहां पर जो शटरिंग है, द प्लान इज टू कंट्रीब्यूट इनटू द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्ट। जितना भी शटरिंग है हमारा वो बैकएंड पे बनेगा, आपकी साइट पर आकर असेंबल होगा, कंक्रीट पोर किया, जॉब डन। Okay, nice. यू सी, सो इस तरीके की अब हम अपने इनोवेशन और ऑटोमेशन पे दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे स्पीड को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लाइक आई सेड, आई हैव टू फिनिश दैट 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ प्रोजेक्ट इन 3.5 months. How will I do that? So you know, it's a blend of everything. और उसके बाद एक सबसे पहले चीज़ आती है कि मुझे टाइमलाइन भी मेरी चाहिए, पर मुझे चाहिए भी अपनी कॉस्ट पे। सो अगेन, यहाँ आप जहाँ तक एजुकेट कर सकते हो क्लाइंट को आप करो, उसे मिसगाइड मत करो कि हो जाएगा और बाद में फिर प्रोजेक्ट आपका रुक जाए बीच में, या वो सफ़र करे बाद में, या फिर आप बाद में फिर चिंदी चोरी करो, यहाँ कॉस्ट बचा लो वहाँ कॉस्ट बचा लो, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है फिर। The German methodologies that are prevalent in again your business and overseas as well.
Can Indian contractors use that realistically? Yes, why not? And why just Indians? Everybody should use that, ना? अब तो see, world is an open market space. अगर कोई टेक्नोलॉजी जर्मनी में अवेलेबल है या स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है तो इंपोर्ट कर लो आप. And once you become a regular, it's in practice with you. So हो सकता है उसको करते करते आप खुद ही अपना एक इनोवेशन कर लो. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. क्लाउड सीडिंग. Yeah. दिल्ली में एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था. यूएई हर साल करता है. Yeah. कर लेते यार एक बार इंपोर्ट. जो 4 करोड़ रुपए तुमने बर्बाद किए हैं वो तुमने अपनी जेब से दिए हैं. किसकी जेब से गए हैं वो? हमारे. है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी? किसने सवाल कर लिया और किसने जवाब दे दिया उस पर? सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट मनी, एक बार कर लेते आप. और एक बार आपको समझ में आ जाता है उसको कैसे करना है, फिर उसको आप अपना फर्दर उसमें और दिमाग लगा लेते. सो बस सी, if something is available in Japan and that's number 1 in the world for any requirement in my subject, I will use that. As simple as We're doing that with metros, for example. exactly. Eventually, I'm an Indian. I have to build in India. I have to build for India. ठीक है ना? मैं रहती तो यही हूँ. मेरी नेशनैलिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी चाहे मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहूं. Exactly. But if somebody is doing something better than me, why not I learn from it and then use it here? Definitely. क्या प्रॉब्लम है उसमें? Have you visited any of the sites in Germany where such practices have been? Yes. Yes, Europe is our second home. Second home as in that our travels are very frequent. And not just in Europe, we are very regular in United States. We are very regular in Singapore. In fact, now we want to expand our operations from pan-India to Sri Lanka, Nepal, Dubai also, because these are the regions which are in our reach. And yes, the demand is coming. And then these people, not like the other 2 countries, but UAE specifically, they have this demand for everything best in the world. You see, from coconut water to chocolates to fruits, everything is imported. उस इकोनॉमी में कुछ भी नहीं था. Correct. Just by importing, आज आप देखो वो कहाँ से कहाँ चला गया है स्पीड पकड़ के. ठीक है ना? सो अगर वहां पर डिमांड आती है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की, देन हेस वुड डेफिनेटली वुड गो देयर एंड बिल्ड देयर. और ऑलरेडी हमारे बहुत इंडियन आर्किटेक्ट्स वहां पर काम कर रहे हैं. Yeah. So yes, if any opportunity comes, we would be happy to collaborate with them. Are there any other countries who are working with this German mindset and they're implementing it really well? Except China, obviously. See, there are many. और एक दूसरे से ना इंस्पायर्ड होना अच्छी बात भी है. ठीक है, हो सकता है आज हम लोगों की ये बात सुनकर कोई और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भी इंस्पायर हो जाए. बहुत अच्छी बात है. अच्छे लोग मार्केट में आएंगे तो आपका कंपटीशन इन कंपैरिजन भी तो उन्हीं के साथ ही होगा ना. फिर होगा वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जो हम ये चीज यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं. अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, बट कई बार 19-20 का फर्क नहीं होता, कई बार 2 और 20 का फर्क होता है. हम उन नेगोशिएशंस में भी बैठे हैं इनिशियली व्हेन वी वर ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, बट नाउ वी डोंट पार्टिसिपेट. अब अगर वो हमें चुनते हैं सामने से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड यूजर, हम भी उन्हें चुनते हैं सामने से. अगर हमारा एल्गोरिदम आपस में मैच नहीं हो रहा ना, बैंडविड्थ आपस में मैच नहीं हो रही, सो आज इस पोजीशन पे हेज कॉन्ट्रैक्ट है कि वो भी मना कर देती है कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे. Fantastic. अगर आप क्वालिटी को और मेरी टर्म्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, देन दिस इज नॉट द राइट कंपनी टू वर्क विद, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Where does quality really break down in India? Is it at the designing stage? Is it at the BOQ stage? Or is it at the execution level? हमारे पास ना क्वालिटी नेम्स और वर्ल्ड लीडर्स की आज की डेट में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में कमी नहीं है. हम बहुत सॉर्टेड हैं उस डिपार्टमेंट में. ठीक है, आवर इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट्स, देयर प्रैक्टिसेस, और कुछ बहुत अच्छी फर्म्स भी हैं जो आज ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट है, which is a very which is something to be really proud of. ठीक है, पर सबको सब कुछ नहीं आ सकता. विश्व गुरु एक ही है, सब नहीं बन सकते. ठीक है ना.
उसके बाद आता है जो उसके BOQs बना रहा है, ठीक है ना। हमारे पास महीने में कम से कम 25 से 30 हाई एंड BOQs आते हैं, ठीक है, जो इन्हीं फर्म्स इन्हीं प्रैक्टिसेस के थ्रू आते हैं। कईयों में बीच में थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, PMCs हो गई और ये स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हो गए एंड ऑल दैट। एंड आई एश्योर यू, व्हेन वी रीड दोज BOQs एंड द प्रॉब्लम्स इन दोज शीट्स, वी सी कि कहाँ गड़बड़ है। हमें वो एरर्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और हम हर एक चीज की, हर एक डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करते हैं बिफोर वी प्रोड्यूस एनी कमेंट्स ऑन दोज, Okay. ठीक है। सो डेफिनेटली ये एक यहाँ पर एरर है जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों शेयर करते हैं। उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूशन। सिंस आई सेड दैट construction is not really a white collar job in India, it is not given enough respect. You tell me honestly, have you ever heard of any celebrated construction company in India? True. Right? Whenever there's an award ceremony, architects are celebrated for their minds. Good, very good, no problem in that. But सिर्फ क्या एक कॉन्सेप्ट से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो? ग्राउंड रियलिटी का कोई मैच चाहिए आपको या नहीं चाहिए, या आपको एक इक्वली उस औहदे की टीम चाहिए या नहीं चाहिए जो आपकी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके? करेक्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास टाटाज नहीं थे या हमारे पास L&T नहीं था। क्यों अंबानी जी का जब घर बना, उन्होंने बाहर से कंपनी बनाकर उसको एग्जीक्यूट करवाया? ये कभी कभी ना क्वेश्चंस हमें खुद से करने चाहिए, हमें आंसर्स हमारे अंदर ही मिल जाते हैं। हम सबको रियलिटी पता है क्या है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम कॉन्ट्रैक्टर्स को उनका ड्यू नहीं देते हैं, एंड सिंस देयर इज नो इंसेंटिव, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। और कई बार तो उनको पेमेंट्स भी पूरी नहीं मिलती हैं। प्रोजेक्ट डिस्प्यूट्स में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, डिलेज आपके होते हैं, रिविजन्स आपकी होती हैं, पेमेंट्स आपकी टाइम पे नहीं आती हैं, ब्लेम उसके ऊपर जाता है, ठीक है ना। सो this through this podcast I have this message for all my fellow contractors also, that we understand your pain, ठीक है ना। now we respect the architect fraternity, उनका एक अपना दिमाग है, उनकी एक अपनी लर्निंग है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, बट लाइक आई सेड नॉट एवरीबडी कैन नो एवरीथिंग, ठीक है ना। जो जिस चीज का डॉक्टर है उसको उसी की सर्जरी करनी चाहिए, अगर वो सर्जन है तो। You don't step into that job, please. If you have an expert on the board, listen to them. They might have some inputs, experience as well, some expertise that they can put in that project. Eventually, अगर आप अपनी ईगो को, आप अपने how should I say this? I think ego is the correct word. उसको प्रोजेक्ट से ऊपर रखते हो ना, तो इवेंचुअली द प्रोजेक्ट सफर्स, ठीक है ना। अगर आप प्रोजेक्ट को सबसे ऊपर रखते हो, ठीक है, आपके लिए जो हो जाए चाहे नीचे बैटल फील्ड पे, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वह ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि आपने उसको डिजाइन किया है, विजन किया है, उस पर पैसा लगाया है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर वो ब्लेम गेम है जो एक के बाद एक ऐसे ही है, ये शिफ्ट होगा फिर वापस आएगा फिर शिफ्ट होगा, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। यू गेटिंग मी दिस? सो यस, द कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, स्मार्ट इनफ, एंड शुड डिमांड नाउ। जो टर्म्स हैं सो हैं, जो काम ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। Do not be a yes sir, do not be a people pleaser, that's what I would like to say here. Why are we not investing in skilled labor in India? हो सकता है इंटेंशन ही ना हो सकता है, या हो सकता है मैं इस सोच में गलत हूँ, बट जब तक मेरे सर पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है एज एन इंडियन, ये सबके लिए, हमारे लिए, ठीक है ना, हम कोई काम करते हैं? क्या आपकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क पड़ता है कि अगर आपके आसपास कोई स्किल्ड लेबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है?
देखो, एज एन इंडिपेंडेंट, एज अ कंपनी, आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो आप उतनी ही तो लोगे ना. अब फॉर एग्जाम्पल, माई पीपल हु वर्क फॉर मी, they are well trained. They have been in this system in my company for 12 years, 15 years, 6, 7 की तो average है ही, ठीक है. We train them. We also send them for training. ठीक है. Real make in India will happen with skilled labor. You have rightly appointed this. Unskilled labor के साथ आप नहीं कर सकते हो काम. ये लॉन्ग रन में आपके फेलियर्स आएंगे ही आएंगे और एक्सपेरिमेंटेशन किसी और के कॉस्ट पे होता रहेगा. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि वो एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे, अपने आप ही सीख जाएंगे, काम हो ही जाएगा, तो फिर ये बहुत बड़ा एक जुआ है जिसमें एक बंदा तो हार ही रहा है. या तो वो काम हो जाएगा या वो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा. सो इफ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, प्लीज गो अहेड. आई विल नॉट. And the biggest fear also is that, oh, what if I teach them? And फिर वो कहीं और जाके काम करने लग जाएगा. तो लग जाएगा. ये कॉर्पोरेट में नहीं होता है. आप एक एमएनसी में एक काम सीखते हो, आप उसका कॉम्पिटिटर आपको फिर एक डबल सैलरी पे हायर कर लेता है. ओके, नो प्रॉब्लम. इस इनसिक्योरिटी के साथ आप कितना लंबा एक गेम में टिक पाओगे? Exactly. And then it also talks about your retention skills as an organization more than anything else, you know. Let's talk about the future of Indian construction industry. What do you think the construction industry in India will look like in the next 10 years? आई थिंक उसका कहीं ना कहीं एक ट्रेलर तो हम अभी देख रहे हैं ना. हर सड़क खुदी हुई है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है. माई ओनली आस्क हियर फ्रॉम द इंडस्ट्री इज प्लीज डिजाइन इट वेल. ठीक है ना. सस्टेनेबिलिटी अच्छी बात है, बट इसको सिर्फ एक बज वर्ड बनाकर छोड़ मत दो. ठीक है. विजन के साथ आप डिजाइन करो और ऐसा डिजाइन करो और ऐसे लोग लेकर आ पाओ जो उसको एक पार लगा सके आपके विजन को. ठीक है. डिजाइन करना एक अच्छी बात है. 3Ds बहुत सुंदर बन जाते हैं. अगर वो रियलिटी में नहीं हो रहा ना, फिर दिल टूटता है ना. क्लाइंट का भी. फिर रिसोर्सेज तुम्हारे वेस्ट होते हैं और इवेंचुअली देन इट इज गोइंग टू नोबडी लाइक्स एन अगली बिल्डिंग. फिर उसको तोड़ोगे, फिर कुछ साल बाद बनाओगे. व्हाट इज द पॉइंट ऑल टुगेदर? ठीक है. तो अगर कंस्ट्रक्शन करनी ही है, सबको पता है करनी है, एक बार की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है. Please invest in that. It is very important that you bring in right people on table for this, the execution of the project also. And once it is done, trust me, your life would be so smooth. आप अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. आप वो पैसे अपनी फैमिली के ऊपर लगा पाओगे. अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाओ, खुद की हेल्थ पे लगाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में लगाओ. Why do you have to waste your time, your resources, your money, your efforts onto maintaining something? What is the point of it altogether? Please change this mindset. So sustainability won't just be a nice to have element. It'll definitely be a non-negotiable moving forward. There has to be, but I think more than sustainability is the regeneration of the planet altogether. Sustain कितना कर लोगे और किस किस चीज को आप कर लोगे. ठीक है. But unless and until it is not turning into an ecosystem, which is regenerating and then helping the next generation use the same resources, it is going to fail eventually. Yeah. What advice would you like to give to young architects and contractors who are coming into the industry now? Use your knowledge well. ठीक है. And this is a learning platform and this learning is never going to end. Because पहले का जो सिनेरियो था ना और जो आज का सिनेरियो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पहले ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी ऐसे चुटकी बजाकर चेंज नहीं होती थी जितना अब होता है. एवरी डे यू हैव समथिंग न्यू टू लर्न. ठीक है. सो आर्किटेक्ट्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है. आप किस तरीके से क्या डिज़ाइन करते हो, क्या मटीरियल्स यूज़ करते हो या क्या मटेरियल्स आपको यूज करने चाहिए, किस पर्पस से कौन सी बिल्डिंग बन रही है, उसका एनर्जी यूज कितना है, कितनी एनर्जी एफिशिएंट है एंड व्हाट नॉट. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आती है. ठीक है ना. सो यूज दैट नॉलेज वेरी वाइजली, प्रैक्टिस and then become an expert of your subject eventually. ठीक है. But at the same time you learn how to collaborate. If you do not have right collaborations, right team to work hand in hand with, then I think I don't know how far you can go.
Very well put, because you said you gave an example of cloud seeding. Yeah. If someone else is doing better than you might as well collaborate with them to bring out the best and कर use it. लो. Correct? और ऐसा तो नहीं है they are our enemies. They are our friends, right? It's not an enemy state कि आप जिनसे help मांग नहीं सकते थे. Use technology. It's wherever it is available, just use it. If Hayes was starting today, is there something you would do differently than what you would have done previously? I think one thing, though we really respect our journey, we really respect the way we have stood tall for 25 years, without bending our heads, without developing this attitude of, yes, sir, ho jayega, sir, no problem. We are very proud of what we are. We walk with an attitude and we love it. We wish to be like this. Okay? We are not a mass company. We are a mid-sized company by choice. We only do bespoke projects by choice, and we wish to be this way. But yes, one thing that I would like to introduce in my company, which we should have done much sooner, is expansion. Okay. हम बहुत टाइम तक ना दिल्ली एनसीआर की मार्केट को ही सब समझ के बैठे हुए थे. ठीक है. अब जो हमने पैन इंडिया एक्सपैंड करना शुरू किया है, वी हैव रियलाइज दैट देयर आर मच मोर मेच्योर मार्केट्स अक्रॉस आवर इंडिया, है ना. Mumbai is one of them. Mumbai has always been. Hyderabad, what a beautiful, welcoming mindset those people have. Okay. I think South India में maximum acceptance हमें वहीं मिली है. Then Bangalore is an amazing market. उसके बाद फिर Tier 2 cities का तो अभी शुरू होगा development. Yeah. So endless opportunities हैं. So if I really had to start Hayes contract here, तो मैं उसको शुरू से ही pan India approach बनाती अपनी, which we introduced much later. Okay. From a conversation today, I've learned that you don't just need taller buildings, you need better, sustainable buildings, thoughtful buildings, and with a mindset which comes from, not architects do have that approach of people first and then systems second. But sometimes when the approach is very binary. Yeah. When you're building a nation, it has to be system first. Correct. And a nation can only benefit if you have this approach, systems first. If you're not disciplined, it is going to collapse someday or the other. And I think the architects could look after the people first approach, whereas contractors could look at system first approach. It's more beef. So that way there is good synergy and the spaces last a lot longer, whereas people who are in the spaces can benefit out of those sustainable structures. So thank you, Navneet, for taking the time out, telling us about the beautiful, beautiful construction industry which is out there. Thank you. And the glimmer of hope that resides in Tier 2 and Tier 3 cities. The GRAP, hopefully, which is a very passing term, hopefully, for Delhi NCR. In the next few years, hopefully, we don't have to go through that. Better policies. Yes, hopefully. So thank you for taking the time out. It's been really interesting and very knowledge-sharing podcast. Thank you, Atharv. Thank you. And I genuinely believe through this mass presentation that we just had, it helps somebody. And, the right message is given out in the industry. It is for everyone. Thank you. Thank you.